Hello my dear students. First of all, welcome to my channel and subscribe to me. Today your topic is for 11th class operation on set. Now first point is union of two set. What is the union? Union means collection. Union means जोड़. Union संयुक्त. Union. This is union of two set. Suppose union of two set A union B. This is the sign of union. A union B is equal to X, whereas X belongs to A और X belongs to B. मीन्स A यूनियन B दो सेटों का वो सेट है जो जिसमें X ऐसे एलिमेंट है, X belongs to A, X A में भी है और या X belongs to B, या तो X A में है या तो X B में है. इसी को हम क्या कहते हैं? यूनियन. दिस यूनियन सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 5, B इज इक्वल टू 4 5 6, देन A यूनियन B. A union B means 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5 यहाँ भी and 6. A union B is equal to 1 2 3 4 5 6 means हम यहाँ पे वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो या तो A में हैं या तो B में हैं, बट जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही वन ही टाइम यूज करेंगे. A union B. This is A union B. इसको वेन डायग्राम में हम कैसे लिखते हैं? this ये यूनिवर्सल सेट A और this B. This is A, this is B. Total portion, shaded portion, A union B. This is union of two set. Intersection of two set. Intersection of two set means symbol of intersection is this. This is intersection. Intersection means common. Intersection means common. Intersection means common. Section means common. Suppose A intersection B X, whereas X belongs to A and X belongs to B. Only difference is और एंड. और होगा तो यूनियन, एंड होगा तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. सपोज अगेन A intersection B, same example this 1 2 3 4 5 4 5 6, then A intersection B means common point means 4 5 4 5. A intersection B. This Venn diagram. This and this. This is A, this is B. Then the shaded portion. This is A intersection B. A intersection B, common point. The shaded region
shaded region this A intersection B, intersection of two set Venn diagram. Now my dear students, properties of union and intersection of set. हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे क्वेश्चनों में बहुत यूज होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती हैं, थोड़ा इसकी हम स्टडी करके देखते हैं। सपोज हमारे पास ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू सिंपली है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, बिकॉज सपोज ए यूनियन ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एज एक्स belongs to A or X belongs to A, means only A. X whereas X belongs to A or X belongs to A, means A union A is equal to A. Now first, second, A union B is equal to A union B is equal to B union A. A union B means या तो A के एलिमेंट या तो B के एलिमेंट, और B यूनियन A मीन्स या तो B के एलिमेंट या तो A के एलिमेंट, तो इट विल मीन्स A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, means commutative law. Now suppose थ्री सेट हमारे पास है A, B and C, थ्री सेट हमारे पास है। तो हम अगर डिस्कस करें A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, तो हमारे पास क्या हो सकता है, मीन्स A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C। A, B और C हमारे पास तीन सेट हैं, तो A यूनियन B होल यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। हम इसको प्रूफ करके देखते हैं थोड़ा सा। नाउ सब लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, X बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C, मीन्स X बिलोंग्स टू A यूनियन B और X belongs to C. This means X belongs to A or X belongs to B union C. X belongs to A or X belongs to B union C. This it will implies X belongs to A union B union C. This X belongs to A union B union C. It implies A union B union C subset A union B union C। तो हमने प्रूफ कर दिया
this equal to this. Simple. X belongs to A union B union C, means X belongs to A union B or X belongs to C, means we can write this X belongs to A or X belongs to B or C, means B union C. X belongs to A or X belongs to B union C, means X belongs to A union B union C, means A union B union C is the subset of A union B union C. तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं. अगर हमें कहीं पे रूल आ गया प्रूफ करने के लिए, सपोज हम ऐसा नहीं भी करते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लें ए बी एंड सी, तो उसके अकॉर्डिंग में हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं. ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मीन्स सारे एलिमेंट मीन्स यू. सिंपल बात, यू. और सपोज ए यूनियन फाई आ जाए. ए यूनियन फाई, फाई मीन्स नील, मीन्स ओनली ए. ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए. That is very important property for 1 marks. Fill in blanks, multiple question में ये important चीज है दोनों. A union universal set this and A union phi this. Both are very important property for 1 marks question, board and also competition. जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी देखी ऐसे ही हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं. ए इंटरसेक्शन ए मीन्स सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास ए. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए सिंपली. नाउ ए इंटरसेक्शन फाई मीन्स ए या तो ए के सेट और या तो फाई के सेट. ऐसा नहीं, ए के भी सेट आएंगे एंड जो फाई के भी सेट, मतलब जो दोनों में कॉमन है. तो दोनों में क्या कॉमन है, फाई. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ए, और ए इंटरसेक्शन फाई मीन्स फाई. क्योंकि फाई क्या होता है, सबका सबसेट होता है. तो ए में भी फाई है और फाई के अंदर तो फाई है ही है. तो ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई. ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट मीन्स ए बट ए यूनियन यूनिवर्सल सेट that is equal to u. Very important point and confusing point. ये एक important point भी है और confusing भी है. तो आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं, समझ सकते हैं. मैथ एक माइंड के अकॉर्डिंग चलने वाला गेम है. मैथ को माइंड से अगर खेलेंगे तो हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा. हमें इसको लर्निंग व्यू में नहीं लेके जाना है. तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है. सिंपल, आपने थोड़ा ट्रिक के लिए सोचना कंपलसरी है. अगर बिना सोचे समझे आपने डायरेक्ट लिख दिया तो ये रॉन्ग भी हो सकता है.
पर अगर थोड़ा सा आप माइंड की ट्रिक को यूज़ करेंगे, क्वेश्चन की स्टडी करेंगे, थोड़ा माइंड में उसको क्लिक करेंगे, माइंड में क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि हमारा आंसर तो हमारे अंदर ही है, माइंड के अंदर ही है, और उसी को हमने पुट करना है। बस हमें ज़रूरत है उस माइंड के अंदर के उस आंसर को ढूंढने की। ये चीज़ आपको कब होगी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रांग होगा। सब्ट्रैक्ट 2 from 3 means 3 minus 2. This is the difference. Subtract 2 from 3. 3 minus 2 means this. Difference of B from A. Subtract of B from A. A minus B. This is the meaning. Now, what is the meaning of A minus B in your set theory? A minus B is X this. X belongs to A and X not belongs to B. Means X belongs to A, X not belongs to B. This is A minus B. A minus B. Now suppose Venn diagram. This A and this is B. A B. A में एलिमेंट है बट B में नहीं है, B में नहीं है, मीन्स दिस A माइनस बी। शेडेड रीजन को ही हम क्या कहेंगे? A माइनस बी। B माइनस A मीन्स X belongs to B and X not belongs to A. Means this A and this. B में है पर A में नहीं है, means this B minus A। किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली वेन डायग्राम से इजीली समझने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए वेन डायग्राम हमें बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी स्टडी करें। A माइनस बी मीन्स जो A में है और B में नहीं है, मीन्स ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? A माइनस A इंटरसेक्शन B। दिस A माइनस B इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। हमने देखा इंटरसेक्शन भी इसमें नहीं है, B तो है ही नहीं, पर इंटरसेक्शन पोर्शन भी नहीं है, तो A माइनस B इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। एंड सेम B माइनस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? जो ये B में ये वाला शेडेड पोर्शन है, तो शेडेड पोर्शन कैसे करके आ रहा है हमारा? इस B में पोर्शन है बट ये पोर्शन भी नहीं है और ये भी नहीं, A तो है ही नहीं, तो इसमें ये कॉमन वाला पॉइंट भी आ रहा है, तो माइनस B इंटरसेक्शन A ये भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने लॉजिकली समझनी है माय डियर स्टूडेंट्स,
लॉजिकली समझने की कोशिश। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए में है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है मीन्स इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेट इज इक्वल टू ए माइनस बी दिस ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट जो बी में नहीं है, तो हम सिंपल इसको ऐसा भी कह सकते हैं, सेम वे टू दिस बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमने सिर्फ समझना है, दिमाग लगाना है। नाउ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। अब क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस बी जो ए में है जो बी में नहीं है, इंटरसेक्शन बी जो बी में है, कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा हमारा 5, क्योंकि बी 5 ए में है बी में नहीं है, इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी में भी जो एलिमेंट है और बी में भी जो एलिमेंट है, तो वो क्या पॉसिबल है 5 दिस। तो ऐसी हमने प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है, हमें क्वेश्चन भी आ जाए कुछ भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी जो ए में है पर बी में नहीं है, तो ए में है दिस 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 1 2 3, ए में है बी में नहीं है, और ये जो बी में भी है दिस 1 2 3, ए में है तो ये बी में भी है, तो हम 4 5 तो लिखेंगे नहीं, और 6 7 ऑलरेडी ए में नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3। बी माइनस ए बी में है पर ए में नहीं है, 4 5 यहाँ है यहाँ भी है, वो लिखना नहीं है। बी में अब क्या है 6 7 है पर यहाँ नहीं है, तो बी माइनस ए 6 7, ये चीज है हमने ये प्रैक्टिस करनी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमने सिर्फ सपोज ये प्रूफ करना है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे, इस पोर्शन को, लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमें ज़्यादा बेटर होगा। फर्स्ट हम क्या फाइंड करें, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स जो बी में भी है और सी में भी है, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे, ओनली 5 6 दिस। बी एंड सी दोनों के कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो बी इंटरसेक्शन सी में आएंगे। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स हमारे पास जो डेफिनेशन कहती है ए के एलिमेंट और बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट एंड बी इंटर सी के एलिमेंट, एंड नहीं और, तो ए के एलिमेंट और बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ए के एलिमेंट 1 2
4 5, सी बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 5 6, 5 हमने लिख दिया, 1 2 4 5 6, इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड की डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी intersection A union C. Now first A union B and then A union C. A union B means जो A में है या B में है, 1 2 4 5 3 4 5 6, जो या तो A में है या B में है। Now B, A union C, A union C means जो A में है या C में है, 1 2 4 5 6 7, A union C. Now A union B इंटरसेक्शन A यूनियन C, तो A यूनियन B में एलिमेंट है एंड A यूनियन C में एलिमेंट है। तो क्या है, 1 2 4 5 6। तो हमने देखा इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, A यूनियन B के एलिमेंट एंड A यूनियन C के एलिमेंट, इनमें जो दोनों में कॉमन है, कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन 1 2 4 5 6। सेकेंड पॉइंट, इट विल implies फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। 10th क्लास के अकॉर्डिंग या 9th क्लास के अकॉर्डिंग लिमिटेड क्वेश्चन नहीं चलते हैं, इसलिए आप लोग घर पे जितने भी आपके पास कोई भी बुक है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग NCERT बेस्ट बुक होती है। NCERT सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया में NCERT यूज होती है, तो हमें उसको लेके तैयारी करनी चाहिए। आपकी अलग अलग और रेफरेंस बुकें अलग होती हैं, उसमें से आप कोई मर्जी यूज़ करें, पर NCERT आपको कंपलसरी यूज़ करनी चाहिए। मैं आपको अपनी तरफ से यही सजेशन दूंगा। और आपको ऐसे कई क्वेश्चनों की प्रॉपर्टी के बेस पे या किसी भी बेस पे स्टडी करनी है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और आप मेरे को आप अपने कमेंट के अकॉर्डिंग सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ओके बाय, अगेन मीट यू नेक्स्ट वीडियो।